I'm associated with wheelchair basketball since 2014. We are going to activate all states and to reach all districts of India so that every physically challenged plays sports. And Delhi team was basically, it is my product that actually I was directly involved with them. These are the youngest kids in India team. Nowhere in India, school level kids representing in senior nationals, and nowhere in India, school kids played represented international tournaments. Actually started by army teams in the world after World War II. Good morning, everyone. Today, I'm honored to be joined by Mr. Varun Ranawat, the President of the Wheelchair Basketball Federation of India. Mr. Ilawat has been at the forefront of enhancing wheelchair basketball in India and has played a pivotal role in making the sport more inclusive for differently abled athletes. Can you tell us about your journey into the world of wheelchair basketball and how you have become involved with the WFI? I'm associated with wheelchair basketball since 2014. Wheelchair basketball, like formally, it came into force in 2014 as a registered body, and it is the only governing body in India. At that time, I was volunteering for wheelchair basketball. And before that, actually, I was a part of NBA program in India. And meanwhile, when I saw this sport, so I got associated with wheelchair. So making everyone play. I found some wheelchair kids was there. So like volunteering these kids for Delhi, mainly it was the Delhi kids, school kids, I picked some kids and start building the team. Later on, as I was involved, a lot of opportunities came to me from WBFI at that time, Madhvi Lata and those people were meeting as a president. So they invited me to start wheelchair basketball in several states for coachings and all. So at that time, I was supporting wheelchair basketball to several states like Uttar Pradesh, Haryana, Chhattisgarh, Kashmir, and Odisha, Manipur. A lot of states I did. So this is how I was into sports, this wheelchair basketball sports, and I was playing also with Delhi teams. And Delhi teams was basically, it is my product that actually I was directly involved with them as a coach also and as a mentor. And presently in last like 2023, I was invited to lead this WBFI, to lead this WBFI. So elections happened and I was chosen unopposed in this, the president of Wheelchair Basketball Federation of India. The wheelchair basketball evolved in India since the inception of WBFI, and what key milestones have shaped this growth? It started, wheelchair basketball actually started from Chennai formally. But otherwise, wheelchair basketball is in India. It is it is started by army teams near Maharashtra, Pune, PRC, Mohali, and Punjab PRC. So these were like army because it's like wheelchair basketball actually started by army teams in the world after World War II. And in India, like they are playing since like 20 years, like it has been 20 years. But when in 2014, when this formally it came into as a federation, so wheelchair basketball that started it's a registered body from Chennai. So it started from Chennai, and like started from 3 4 states, and now presently 15 affiliated states are here. Already reached to 23 states, and now we have a plan to reach almost all states and union territories across India. How has this evolved over the period? Presently, today we will be having like this October we will be having eighth national championship. India India represented internationally in Asia Oceania zone, and every year they are representing it. Not only this, that India is also part of the ICRC tournament, and in 2020, India hosted one international championship. So from state to international and to hosting in international tournament. It was a great journey, and in this year national championship. So progressively, WBFI did a very good job,
what challenges do differently abled athletes face in accessing opportunities for participation in basketball, and how is WBFI addressing them? They are basically at foundational level. There are 3-4 challenges. One of is like awareness of this physically challenged sport. So awareness of physically challenged sport is one of the biggest barrier, and we have to be like we have to make people understand, the community understand that sport is for all. The second is like making physically challenged people, putting them into the game. How we can include them into the game. It's another challenge that inclusive that we call it inclusion. We need a lot of infrastructure for it to have an indoor basketball court. So and the third is like having a positive environment to play. We should be having programs and opportunities with safety hazards and all, and protection and safeguard policies should be there. So a lot of mentorships activities and a lot of awareness was also required regarding this sports integrity and all. And the fourth is like systematic approach. Systematic approach in the sense that we have to work collaboratively. Collaboratively in the sense both physically and able to be working together for a better outcome, to build a healthy nation and an inclusive nation and a powerful nation in the sense of winning championships. Progressive nation. Yes, progressive nation. So how is WBFI addressing these challenges? We are like these are the basic barriers. These are the basic barriers so that we have a 5 year plan now for it, and we are for awareness. We are going through a lot of social media advocacy and a lot of rehabilitation centers, schools. As the youngest player in wheelchair basketball, तो मैं 6th क्लास में थी। मैं अपनी गर्ल्स टीम को ट्रेनिंग की थी। बीच बीच में कितनी रुकावटें आई हुई हैं? मुझे ना प्रॉब्लम फेस करना एक्साइटेड लगता है। जिस तरीके से उस बच्चे ने अपने चैलेंजेस को फेस किया, फाइट किया एंड शी हैज ओवरकम इट, इट्स इंडीड अ ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। Hello everyone, good morning. Today I have Alisha with me. I'm delighted to be speaking with Alisha, who is making waves as the youngest player in wheelchair basketball. Her story is one of talent, passion and determination, and I can't wait to hear her insights. Alisha, how did you first discover wheelchair basketball and what made you fall in love with the sport? जब मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल जब खेलना शुरू करा था तब मैं 6th क्लास में थी। 2017 में मैंने स्टार्ट करा था। अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल था, वहाँ से मुझे वहाँ पे मेरे कोच वरुण अहलावत सर मिले, उन्होंने मुझे सिखाया। तब से मेरी लाइफ में व्हीलचेयर बास्केटबॉल आया। आप प्यार में कैसे आए स्पोर्ट की? क्या है पसंद आया ऐसा व्हीलचेयर बास्केटबॉल से? मतलब क्या कहता है ये है कि हमारे भी गेम में ना बहुत सारे गेम है, पर मुझे क्या सीख व्हीलचेयर बास्केटबॉल से, क्योंकि मैंने हमेशा जो फोकस करा है वो अपनी व्हीलचेयर बास्केटबॉल को ही। आई थिंक मैं खेलने को बैडमिंटन भी खेलती हूँ, टेबल टेनिस भी खेलती हूँ, पर कहते हैं ना सबसे ज्यादा लगा वो मेरा व्हीलचेयर। एक बार जिसको देख के कहते हैं ना, एक बार देखा तो प्यार हो गया। What has been the most exciting part of your journey as the youngest player? और youngest player भी रह चुके हो, तो सबसे ज्यादा प्राउड क्या लगा आपको? बीच बीच में कितनी रुकावटें आई हुई हैं उनको उनसे आगे बढ़ना, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या आया? एक्साइटिंग सबसे ज्यादा क्या लगा? सबसे ज्यादा इसमें मजा आया मुझे ना प्रॉब्लम फेस करना एक्साइटेड लगता है। मतलब ये नहीं कि बहुत से लोग होते हैं जो प्रॉब्लम फेस नहीं कर भागते सकते, हैं। उनसे भागते हैं, पर मेरे जो मेंटर हैं वरुण सर, उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे, पर उन्हें फेस करना, सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। सही बोला। उसके बिना हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। ये कैसा लगता है? आप प्रैक्टिस में कैसा करती हो और आप स्कूल में के साथ इसको कैसे बैलेंस करती हो? हाँ, जब मैं 10th क्लास में थी तो मेरे बोर्ड थी, मेरा प्रेशर था, और तरफ मेरे ट्रेनिंग था, मेरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट था जहाँ मुझे जाना, तो मैंने स्कूल में अपनी एप्लीकेशन दी। और कभी कभार जब हफ्ते में अगर मेरी 3 दिन प्रैक्टिस होती तो मैं स्कूल ऑफ करके यहाँ पे आती हूँ, 3 दिन स्कूल जाती हूँ। जो मेरे स्कूल का काम वर्क होता है वो मैं ऑनलाइन थ्रू करती हूँ, या फिर फ्रेंडों से हेल्प लेती हूँ, फिर टीचरों से हेल्प लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्कूल की टीचर थी ना वो भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल थी।
और आप ट्रेनिंग कैसे करते हो? प्रैक्टिस में क्या-क्या चलता है? वार्म अप, प्रैक्टिस, ड्रिल्स? पहले सुबह उठती स्टार्टिंग तो यही है। मैं स्टेडियम जाती हूँ, फिर दूसरे बास्केटबॉल ग्राउंड में जाती हूँ। तो पहले व्हीलचेयर को बैठती हूँ, उसके ऊपर स्टैटिंग स्टैटिंग जितनी भी करनी होती है वो करती हूँ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ग्राउंड में उतरती हूँ, ग्राउंड का फर्स्ट चुनकर कि अच्छी हो, पूरा दिन अच्छा जाए। उसके बाद क्या कहते हैं, वार्म अप करते हैं। वार्म अप के बाद क्या कहते हैं, कुछ व्हीलचेयर बास्केटबॉल की ड्रिल्स होती हैं, उन्हें करते हैं। फिर उसके बाद मैं अपनी गर्ल्स टीम को ट्रेनिंग देती हूँ, जिसमें जो जंग करके जा रहे हैं ऊपर, उनकी हेल्प करना, उनकी मेंटल करना। और हमेशा क्या कहते हैं, ट्रेनिंग ऐसी होती है कि बी सीरियस। आप इतनी यंग हो तो कुछ तो चैलेंजेस आपको फेस करने भी पड़े होंगे, तो आपने ओवरकम कैसे किए चैलेंजेस को फिर? हाँ, बहुत चैलेंजेस ज़्यादा मोस्टली बहुत कम से ज़्यादा चैलेंजेस एक होता है घर से स्टेडियम जाना या फिर स्पोर्ट्स कोर्ट जाना। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं, जैसे ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग में फेस करना होता है प्रॉब्लम। ठीक है, और क्या कहते हैं, फैमिली से भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि स्पोर्ट्स को देख के और फैमिली को वो भी उनको भी वो करना पड़ता है। कि जैसे आज आपने देखा यहाँ पे व्हील ट्रैक की भी टेस्टिंग हुई, तो आप क्या देखते हो इन सारी डिवाइसेस में क्या पोटेंशियल है, इस व्हीलचेयर प्लेयर्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए कैसे पुश करते हैं? टेक्निकल का तो क्या कहता है, मैं इतना ही बोलूँगी कि टेक्निकल जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मतलब अवेलेबल चलता है। और उससे हमें ये भी पता चलता है कि मतलब क्या कहते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे व्हीलचेयर है, अब व्हीलचेयर हम चलाएंगे, अब हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि टेक्निकल प्रॉब्लम व्हीलचेयर में या फिर हमारे या कितनी पावर लग रही है, हम इतनी जल्दी क्यों थक रहे हैं, अगर ऐसे डिवाइसेस नहीं आएंगे तो फिर आप अपने रिसोर्सेज ढंग से भी नहीं लगा पाओगे कि कब मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही है, मैं इतनी जल्दी क्यों थक रही हूँ, कितना फोर्स लग रहा है बास्केट शूट करने में, या मेरी आदत नहीं है। तो ये सारी, तो ये आपको क्या लगता है, ये डिवाइसेस हेल्प करते हैं आपको? हाँ बहुत होते हैं। उन डिवाइसों से हमें ये पता चलता है कि हमारी क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कितनी है या फिर स्ट्रेंथ कितनी है, इन सारी चीज़ों की। इन्हें पोटेंशियल दिखता है, आगे पुश करते हैं आपको और अच्छा करने के लिए जब आपके पास ऐसी असिस्टेंसेज होती है? ऐसा लगता होगा बेटर हमें परफॉर्म करना है, आगे बढ़ना है ना? तो आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या रहा है स्पोर्ट्स में, और वो आप उनसे कैसे मोटिवेशन लेती हो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए? मेरी लाइफ की इंस्पिरेशन मेरे कोच गौरव अहलावत सर हैं, जिनकी वजह से आज मैं ये कह रही हूँ कि अगर आज मैं इंटरनेशनल लेवल व्हीलचेयर बास्केटबॉल की प्लेयर कहलाई जाती हूँ, तो वो मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद मैं गांव की लड़की दिल्ली में नहीं पढ़ती और फिर दिल्ली से क्या कहते हैं, मतलब बाहर कंट्री नहीं जाती, अपनी इंडिया रिप्रेजेंट करती। तो मैं यही कहूँगी, मेरी इंस्पिरेशन मेरे मेंटोर मेरे कोच वरुण सर हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। कोई आपका प्लेयर्स में रोल मॉडल है जो इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी टीम का कोई का प्लेयर बड़े बड़े? हाँ, ये है कि जो अदर कंट्री के प्लेयर्स हैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। मतलब मैं बहुत आगे करना चाहती हूँ अपने इस गेम को, अपने उस चीज को। तो आप ये कैसे सोच रही हो कि हम इसको और पॉपुलर कैसे करें लड़कियों में भी, हम और कैसे व्हीलचेयर बास्केटबॉल के लड़कियां और यंग प्लेयर इकट्ठे करें? हाँ, इस चीज की भी हम सभी कर सकते हैं। जैसे कि व्हीलचेयर बास्केटबॉल के बारे में किसी को ना पता हो तो हम उन्हें बता सकते हैं, अवेयरनेस कैंप्स। अवेयरनेस कैंप कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं, सोशल मीडिया थ्रू कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन थ्रू, मतलब और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऐसा होता है कि कुछ लड़कियों को नहीं पता होता कि कुछ गेम भी हैं उनको, जैसे कि जो हैंडीकैप है या फिर फिजिकल है, तो उनके लिए हम ये हेल्प कर सकते हैं कि हम उन्हें बताएं, उन्हें सिखाएं या फिर जहाँ हम जा चुके हैं वो भी वहाँ जाएं। या तो जैसे आजकल जो नई चीज चल रही है, हमने पैरालंपिक्स में देखा, डिसेबिलिटी इज द न्यू एबिलिटी। जी, हमने 29 मेडल सिक्योर किए, जबकि हम नॉर्मल ओलंपिक्स में इतने नहीं सिक्योर कर पाए। तो ये बात तो आजकल आप क्या कितना मानते हो, डिसेबिलिटी इज द न्यू एबिलिटी? मैं ये कहती हूँ, अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाता, वो गलत है। अरे जब वो करेगा उसको आप मोटिवेट करोगे या फिर उसको अवेयरनेस करोगे इस चीज के लिए, उसको सजेशन दोगे तो शायद वो बहुत कुछ कर सकता है। तो कभी किसी को ये नहीं कहना चाहिए ये नहीं कर सकता। आपका भी प्राउडेस्ट मोमेंट अपने करियर में क्या रहा?
जिसमें आपको सबसे ज्यादा गर्व है कि हाँ ये मैंने बेस्ट किया अपने करियर में? मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड ये लगा कि जब मैंने 2022 में अपना फर्स्ट इंटरनेशनल खेला था, यंगेस्ट प्लेयर थी और सिल्वर मेडलिस्ट भी थी। खेला की स्टार्टिंग होती है तो फोकस नहीं होता, और जब मेरी फर्स्ट टाइम शूट गई तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो तभी मुझे वरुण सिंह ने मोटिवेट किया और बोला कि एक दिन तुझे भी प्लेन में बैठना है ना, तो अगर तू करेगी तो प्लेन में बैठेगी। बस ये चीज़ था और मेरे ये अंदर आपका मोटिवेशन है। कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी छोटा सा? छोटा सा मैसेज ये है कि लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए कभी हार नहीं माननी चाहिए। और एक मैसेज हुआ, मैं स्पेशल अपने कोच वरुण अलावा सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। अगर लाइफ में अगर ऐसे कोच मतलब बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प हमेशा करी, मुझे हमेशा मोटिवेट किया। थैंक यू इन सर एंड थैंक यू सो मच। अब आपके फ्यूचर की क्या गोल है? आप अपने करियर में आगे क्या करना चाहते हो? वैसे तो मैं स्टडी में बीए फर्स्ट ईयर कर रही हूँ, और मेरा स्टडी में यही है कि मैं अच्छी एक टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा, जिन टीचरों से मैंने मतलब जिन टीचरों ने मुझे हेल्प करी, मैं भी उनकी तरह और बच्चों की हेल्प? हेल्प करना चाहती हूँ। और स्पोर्ट्स में यही नहीं है कि मैं अपने स्पोर्ट्स को आगे चलाऊँ, जिस तरीके से मेरी वरुण सर ने हेल्प करी है स्पोर्ट्स में, मैं भी क्या कहते हैं मतलब जो वरुण सर ने मुझे सिखाया है वो भी मैं किसी और को सिखाऊंगा। और हम इंडिया की यंगेस्ट टीम है, यंगेस्ट टीम और यंगेस्ट प्लेयर, ये तो टाइटल है जो हमें थोड़ा अच्छा लगता है। वो मैच कैसा था? तो स्कोर तो मैं बताऊंगा नहीं, बहुत बेकार था वैसे, हम ही हारे थे। आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते हो? मोबाइल से दूर है। स्टार्टिंग में तो ऑफकोर्स सब ऐसे ही बोलते हैं, बट जब फैमिली को एक तरह से बिलीव हो गया। राइट नाउ आई एम एन एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर ऑफ व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। जिसके बाद में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो घर से बाहर नहीं आता। हाँ ऑफकोर्स मुझे अपने पैरालंपिक में मेडल लेके फिर मोदी जी के साथ जाना जो हमेशा होता है। Joining me today is Rishabh, an international level wheelchair basketball player who has represented India on several prestigious platforms. His journey is one of dedication, perseverance, and incredible skill. Rishabh, how did your journey into wheelchair basketball begin, and what inspired you to pursue it at an international level? जर्नी की बात करूँ तो 2016 में जो मेन जर्नी स्टार्ट हुई थी, उससे पहले भी मैं बास्केटबॉल खेलता था, बट क्या है जब इतना इंटरेस्ट नहीं था, जब मुझे सिर्फ मैचेस देखने में मज़ा आता था कि मेरे जैसे हैंडीकैप लोग खेल रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं देखता था। तो अमर ज्योति स्कूल से मैंने मतलब नर्सरी टू 8 कंप्लीट करी है। तो वहाँ पे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि चल ठीक है तू बास्केटबॉल देख मत, तू खेल। तो मैंने खेल के देखा, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो और भी अच्छा और भी बढ़ा। तो उसके बाद फिर वरुण सर आए, वरुण सर ने फिर मेन जर्नी स्टार्ट करवाई। फिर हमने फर्स्ट कैंप अटेंड किया था 2016 में, जब उस टाइम पे थाईलैंड की टीम आई थी। तो हमने देखा कि ये जो व्हीलचेयर बास्केटबॉल है इंटरनेशनल लेवल पर भी है। तो फिर हमें इसके बारे में और पता चला, फिर हम इसके साथ कनेक्ट हुए। फिर 2016 में मैंने एक इंडिया टीम का सिलेक्शन कैंप अटेंड किया था, जो कि इंडिया की फर्स्ट टीम जा रही थी उस टाइम पे 2017 अंडर 23 के लिए। वो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की फर्स्ट टीम थी, जिसमें मैं पार्ट था, और मेरे साथ दिल्ली के 2 और भी थे। तो उस टाइम पे हम इंडिया के यंगेस्ट किड थे जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं से मेन जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई। आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है पूरी जर्नी में? किस चीज ने आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है? ऐसा कोई पॉइंट तो मैं बता नहीं सकता, बट ये था कि जब मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ तो एक अच्छा लगता है, जो कि मतलब बाकी मैं हैंडीकैप लोगों को देखता हूँ तो वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस होते हैं अपनी लाइफ से, वो सोचते ही नहीं है, उनकी लाइफ में कोई मोटिव नहीं होता। तो वही सारी जो उससे एक तरह से वो बास्केटबॉल में निकलता है, जो भी मतलब एग्रेशन निकलता है, जो भी टीम के साथ निकलता है ऑन कोर्ट,
तो वो जो मुझे पॉइंट है वो बहुत अच्छा लगता है। आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है? इंस्पिरेशन ये है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को जो है हम पहली चीज़ ये है कि हम एशिया क्वालिफाई करें हैं, और जो है कि अपने इंटरनेशनल प्लेयर जो हमारे हैं हम उनके साथ जाके खेलें। जैसे कि अभी जैसे वर्ल्ड वाइड देखेंगे हम, स्टीव स्टीरियो है, पैट्रिक एंडरसन है, ये वेचर बास्केटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर है और ये पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट है। तो वो ये है कि हम वहाँ जाके उनके साथ खेलें और उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखें। इसी से ही मैं आपसे अब पूछना चाहूंगा, आपके करियर की मोमेंट्स क्या रहे हैं जिनके चक्कर में आपकी ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़ गई? ग्रोथ एक तरह से ये पड़ी है कि हमने पहले इंटरनेशनल खेला, फिर हम नेशनल खेला, तो वो सबसे बड़ा की पॉइंट है। सो 2017 में हमने खेला, फिर उसके बाद हमने नेशनल्स भी खेले, दिल्ली टीम को रिप्रेजेंट करा। फिर दिल्ली टीम की पहले हम रैंक देखते थे तो 8 आ रही थी, 9th आ रही थी। फिर उसके बाद से फिर जब हमने ज्वाइन करा तो दिल्ली टीम की जो रैंक है वो पुश हुई है। लास्ट टाइम जब छत्तीसगढ़ में थे तो उस टाइम पे 5th रैंक थी और हम इंडिया की यंगेस्ट टीम है। तो नेशनल लेवल पर जो खेल रहा है, तो हमारे पास सबसे छोटा बच्चा है नेशनल लेवल पर। और अभी जो इंडिया की टीम गई है अभी 2024 में, अभी लास्ट नवंबर में, तो उस टाइम पे हमारे पास हमारी टीम से 5 प्लेयर थे। तो यंगेस्ट टीम और यंगेस्ट प्लेयर, ये जो टाइटल है ये हमें थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब फ्यूचर प्लेयर्स, फ्यूचर इंडिया प्लेयर, का फ्यूचर। हाँ इंडिया के फ्यूचर, क्योंकि जब तक फ्यूचर को मौका नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि हम एशिया क्वालिफाई करेंगे। बस वही एक है। आपकी करियर का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट या सबसे ऐसा मोमेंट जो आप हमेशा याद रखोगे वो क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट बास्केट फर्स्ट बास्केट, चाइना के खिलाफ। चाइना। हाँ, वो मैच कैसा था? वो मैच तो चलो स्कोर तो मैं बताऊंगा नहीं, बहुत बेकार था, वैसे हम ही आ रहे थे। तो ये था कि इंटरनेशनल लेवल पर आप जब जाके सीखते हो ना दूसरी टीमों से, तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। इंडिया में आप खेल रहे हो बहुत बढ़िया, बट इंटरनेशनल लेवल पर आपको पता चल जाता है कि आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मेरी जो फर्स्ट बास्केट थी तो उस टाइम पे मुझे आंसू भी आ गए थे। मैं कह रहा फर्स्ट बास्केट, हाउ इज़ पॉसिबल, कैसे हो गया? तो वो तुक्के से गई थी। तो वो मेरे एक की पॉइंट है। आप इतनी इंटरनेशनल लेवल पे इतना अच्छा बास्केटबॉल खेलते हो, तो आपकी ट्रेनिंग कैसी है कि आप अपना शेप बना रखो और इतने लेवल पे हमेशा खेल पाओ? सेम ये है कि डिसिप्लिन एंड कंटिन्यू, ये 2 की पॉइंट्स रहते हैं, तो इन्हीं पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड ये है कि हम रोज़ तो इससे टाइम नहीं दे पाते, बट हमारा टारगेट होता है कि हम वीक में 3 या 4 बार अपनी स्किल्स पे काम करें। आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते हो? मोबाइल से दूर रहकर, मोबाइल से हम जितना मतलब दूर रहते हैं तो उतना ही हम ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मेंटली आप कह रहे हो कि जितना हम फोन से दूर रहेंगे मेंटली उतना स्ट्रॉन्गर बनेंगे। हाँ। आपने अपने इंटरनेशनल खेलने की कॉम्पिटिशन्स में चैलेंजेस कैसे कैसे फेस किए और क्या क्या फेस किए हैं? चैलेंजेस ये होते हैं कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल नहीं हो पाती। जैसे कि हमारे पास एक व्हीलचेयर आती है जो इंडिया में 35,000 की है, तो वो ही व्हीलचेयर हमें मिल नहीं पाती। आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो उनकी जो व्हीलचेयर की कॉस्ट होती है वो मिनिमम 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे बढ़ती रहती है। तो उनके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बहुत अच्छी है, तो जब भी जो उनकी रैंक है वो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया से बेहतर है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से, वो बिल्कुल उनके सही। पास बहुत ज्यादा है। वो बहुत ज़्यादा है, वो वहाँ उन्हें बहुत सपोर्ट मिलता है, बट यहाँ कुछ पॉइंट्स से रह जाता है। बट अभी जैसे कि वरुण सर जैसे प्रेसिडेंट बने हैं WBFI के, तो वो इन्हीं चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं। मेन टारगेट उनका वही है कि जो प्लेयर है उसको बेसिक रिक्वायरमेंट जरूर मिलनी चाहिए। व्हीलचेयर भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, बट अब चलो इस पे काम हो रहा है। वैसे अब आपको क्या लगता है हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? ओवरकम यही है कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो प्लेयर की है वो फुलफिल की जाए। जैसे कि व्हीलचेयर हो गई, और कोर्ट भी नहीं मिलता। जैसे कि जो हमारी व्हीलचेयर होती है वो स्पेशलिस्ट इंडोर कोर्ट के लिए होती है, ठीक है। हम उससे आउटडोर कोर्ट में खेलेंगे, जो हमारे टायर है वो फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, व्हीलचेयर डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस होता है। व्हील ट्रैक और व्हील ट्रैक जैसे डिवाइसेस ने आपको और आपकी दिल्ली टीम को अपने पर्सनल गोल्स अचीव करने में कैसे हेल्प किया है? आज दिल्ली टीम को बेस्ट टीम मानी जाती है और यंगेस्ट टीम, तो उसमें व्हील ट्रैक जैसी टेक्नोलॉजीज और व्हील ट्रैक ने कैसे हेल्प की है आपकी? टेक्नोलॉजी इसमें बिल्कुल सपोर्ट करती है, डेटा आपको मेजरमेंट करती है। आईएमई सेंसर वो हमें मदद करता है कि जिससे कि हमें अपनी स्पीड के बारे में पता चलता है। जितनी ज़्यादा हमारी स्पीड होगी तो उतने हमारे अच्छे मूवमेंट होंगे, जिससे क्या है कि हम गेम में उतना एक्टिव होंगे।
इससे क्या होगा कि हम क्या है कि फिर उतनी जल्दी बास्केट भी कर पाएंगे, क्योंकि जो बास्केटबॉल का जो एक तरह से जो गेम है वो टाइमिंग के ऊपर भी IMO हेल्प करता है। Can you share your experiences with competing internationally? How does wheelchair basketball in India compare to other countries? यही है कि हमें एक्सपीरियंस मिलता है जब भी हम जाते हैं तो जब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा इंटरनेशनल लेवल का, तो मुझे नहीं लगता कि हम शायद से उस स्टेज को क्वालिफाई कर पाएंगे। और वहाँ का सीन कैसा है बास्केटबॉल का और यहाँ का कैसा है? वहाँ का पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। जब भी आप जाते हो हैं तो उन्हें चीज़ें मिल रही है, हमें भी मिल रही है, बट क्या हो रहा है कि हमें उसके लिए मेहनत करना पड़ रहा है। तो वहाँ जैसे क्लब बने पड़े हैं तो वहाँ पे खेल रहे हैं, वहाँ नेशनल हो रहे हैं तो खेल रहे हैं, कंटिन्यू एक्टिविटीज़ हो रही है तो वो भी होता है। सो बस यही है। और कम्युनिटी और आपकी फैमिली ने क्या रोल प्ले किया है इतनी बड़ी सक्सेस में? इतनी बड़ी सक्सेस में फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फैमिली हो गया, टीचर हो गए और स्कूल्स हो गए हैं और मेंटर हो गए। तो ये 4 की पॉइंट होते हैं जो मुझे मुझे लगता है हमें बहुत सही से मिला है। वरुण सर हमारे जो मेंटर हो गए, जो हमारे स्कूल हो गया हैं, नर्सरी से लेकर 8 तक तो हम एक ही स्कूल में थे। हम उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। तो उसके बाद क्या क्या होता है कि बास्केटबॉल बिल्कुल बिल्कुल बंद हो जाता है। बट क्या था, जो हमारा पहले वाला स्कूल था, उन्होंने हमें बोला ठीक है तुम ऐसा करो, तुम हमारे स्कूल में आके खेल सकते हो। उन्होंने हमें अलाउ कर दिया। तो वहाँ हमें फिर जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल था, तो वहाँ जैसे कि बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है, तो हाँ। उन्होंने बोला कि हम तुम्हें कैसे सपोर्ट करें। बस हमने कहा कि आप ऐसा कर सकते हो कि हमें छुट्टी दे सकते हो, जिससे कि हम क्या है कि जो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो नेशनल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और कम्युनिटी ने क्या रोल प्ले किया? आपको लोगों ने सपोर्ट किया या बोला नहीं पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो? नहीं, स्टार्टिंग में तो ऑफ कोर्स सब ऐसे ही बोलते हैं, बट जब फैमिली को एक तरह से बिलीव हो गया ठीक है, अब हमारा बच्चा कुछ कर रहा है तो इसमें तो फैमिली ने भी उल्टा सपोर्ट किया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक मैं सिर्फ 2 जगह जाता था, स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया। इसके बाद से मैं घर से बाहर निकला ही नहीं हूँ। जो मैं घर के बाहर निकला हूँ तो वो मैं 8th क्लास में गया था, वो भी विदाउट फैमिली, हैदराबाद। तो वो स्कूल के साथ गया था। तो स्कूल ट्रिप पे? हाँ, इतने स्कूल ट्रिप पे नहीं गए, नेशनल्स के लिए गए थे एक तरह से। तो वहाँ एक डेवलपमेंट कैंप था, तो इसलिए जब फैमिली को लगा ठीक है अब ये है तो अब ये हमारे बिना जा सकता है कहीं पे भी, तो फैमिली ने कहा ठीक है अब तू जा। जा रहे हैं। हाँ, आप जा रहे हैं। और आपकी लाइफ में रोल मॉडल ने क्या रोल प्ले किया? कितनी हेल्प की और कितना आपको हमेशा संभाल के रखा? संभाल के रखा तो ये है कि हमारे हमारे ऊपर कुछ भी दिक्कत आती है तो जो जो रोल मॉडल होते हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो जैसे कि मैं वरुण सर का ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे कुछ भी दिक्कत होती है मैं कहता हूँ सर ये मुझे दिक्कत हो रही है, सर कह रहे ठीक है मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एंड वो अपना 100% देता है। जो भी मतलब दिक्कत आती है हमारी टीम के ऊपर भी आती है, जो भी आती है, तो वो हमेशा खड़े रहते हैं। हमें पता है कि हम उन्हें फ़ोन करेंगे तो वो बंदा है हमारे लिए बस। तो आपको लगता है दूसरे लोगों को भी अपनी लाइफ में रोल मॉडल रखना चाहिए? रोल मॉडल और मेंटर, ये दोनों। 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये क्या होता है, रोल मॉडल तो आपको सेव करेगा, ठीक है? जो मेंटर होगा वो आपको गाइड करेगा। आपको असल में गाइड करने वाला कोई नहीं है तो मुझे नहीं लगता फिर कुछ हो पाएगा। आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल वैसे वरुण सर को ही बोलेंगे, बट क्या है हम जिसकी तरह बनना चाहते हैं, जैसे कि हमारे जैसे इंटरनेशनल प्लेयर हो गए, स्टीव स्टीवी हो गए, हैं? और पैट्रिक एंडरसन हो गया, हमने देखा है। हमने फर्स्ट वीडियो जब सर्च मारी थी यूट्यूब पे, जब हम आए थे, तो व्हीलचेयर बास्केटबॉल हमने सर्च मारा था तो हमें हमें यही दिखे थे। तो हमने सोचा था भाई इनके साथ तो ऐसा ही बनना है, जैसा इन्होंने अपनी कंट्री के लिए किया है, तो वो ही हम करना चाहते हैं। What advice would you give to young wheelchair athletes aspiring to reach the international level? डिसेबल्ड में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो घर से बाहर नहीं आते। तो पहले उन्हें घर से बाहर आना होगा, घर के बाहर आना पड़ेगा, दुनिया को देखना पड़ेगा, तब जाके वो व्हीलचेयर बास्केटबॉल में घुसते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि अभी हम नेशनल्स गए थे, तो हमारी दिल्ली वुमेन की टीम्स भी गई थी। तो क्या है कि वो गर्ल्स ऐसी थी कि वो घर से बाहर आई नहीं थी। तो हमने उनसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करा कि आप जाने दो, ठीक है? आप टेंशन मत लो, ये बिल्कुल सेफ रहेंगे। ये नेशनल्स खेलने जा रहे हैं। तो हमने उनकी फैमिली से रिक्वेस्ट करी कि आप जाने तो दो, आप इन्हें बाहर देखने दो। आप जब खुद ही इन्हें जाने नहीं दोगे तो फिर ये क्या देखेंगे एंड क्या सीखेंगे? तो क्या है कि जब गर्ल्स वहाँ से बाहर आई तो उन्होंने कहा भैया ठीक है हमें भी ऐसी ऐसी करना है, आप हमें अपने साथ कनेक्ट करो। तो हम भी दिल्ली टीम के लिए और इंडिया के लिए मेडल लाना चाहते हैं। बस हमारा
रही है कि वो अपने घर से बाहर तो निकले, एक्सपोजर एक्सपोजर मिले। और क्या है कि जब तक घर से बाहर नहीं आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैं खुद ही घर के अंदर रहा हूँ तो मुझे पता है। और प्लेयर्स में खेलने की भी इच्छा होनी चाहिए, फिर ये बिल्कुल। नहीं है कि हमारा मन ही नहीं खेलने का, तो मजे मजे में टाइम पास के लिए आ रहे वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जो मजे के लिए आते हैं वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होते हैं, जो सीखने के लिए आते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं। तो आपकी एडवाइस क्या रहेगी प्लेयर्स को जिनको आना है और सीखना है बास्केटबॉल आगे? आना है, सीखना है, तो सबसे जरूरी तो रही है एक घर वाला पॉइंट कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे ना, तो आप भूल जाओ कि कुछ होने वाला है। क्योंकि हम खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हम घर से बाहर निकले तो हमें पता चला है व्हीलचेयर बास्केटबॉल का, कि व्हीलचेयर बास्केटबॉल भी जैसे इंडिया में कुछ है। मतलब पुश करके अपनी बाउंड्रीज को पुश करके पूरी कोशिश करनी है कि जिंदगी में जो अपॉर्चुनिटी मिले वो पूरी परस्यू करनी है। डेफिनेटली, यस। आपके पर्सनल गोल्स क्या है फ्यूचर के लिए इन टर्म्स ऑफ ए पर्सनल करियर एंड कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ व्हीलचेयर बास्केटबॉल इन इंडिया? Right now, I am an executive committee member of Wheelchair Basketball Federation of India. एक ये था जो मैं शायद से अचीव करना चाहता था, बट मुझे मिला है। साथ ही ये है कि ये जो है फेडरेशन बहुत ग्रो करे, जो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करे अच्छे से, जो अभी तक करके आ रही है, बट चाहते हैं कि पहले से बेहतर करे। क्योंकि क्या है कि कुछ चीज़ों के कारण ये टीम पहुंचती नहीं है। इस बार जो टीम गई तो उसे भेजना ही बहुत बड़ा चैलेंजेस था, बट ये था कि हम बस इन्हें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिले बस। आपके पर्सनल करियर गोल्स क्या हैं और आपको अपने देश के लिए भी मेडल जीतना है, गोल्ड मेडल हाथ में लेके पैरालंपिक्स में? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे अपने पैरालंपिक में मेडल लेके फिर मोदी जी के सामने साथ जाना है, जो हमेशा होता है, वो करने का एक है। तो आप कोई हमारे व्यूअर्स को कोई अपना मैसेज देना चाहोगे जाने से पहले? लास्ट मैसेज, कंफर्ट जोन से बाहर मैसेज कीप योर कंफर्ट जोन। बस वही आपको पीछे खींचता है, उसी को आपको ओवरकम करके आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, है ना? सही कहा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू। वेलकम। तो आपके चैलेंजेस क्या रहे हैं, इनने आपको कैसे बनाया है, क्या बन गया आप इन चैलेंजेस से? काफ़ी स्ट्रगल रहा, तो ये भी हमें नेगेटिविटी भी ज़रूरी है आना लाइफ में। कुछ लोग बताने वाले कि आपकी कमियां बताते हैं, ये वास्तव में हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किस चीज़ में? दिव्यांगता से ही मोटिवेशन मिलती है, दूसरों को देख के। यार नॉर्मल लोग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं आपको बताऊं, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। जैसे कहते हैं डिसेबिलिटी इज द न्यू एबिलिटी, तो वो जी 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 एबिलिटी है हमें, ऐसा नहीं है, हमें कभी नहीं लगता है कि हमें नॉर्मल की तरह होना चाहिए। Good morning everyone. Hello. Today I am with Mukesh Yogi. A dedicated wheelchair basketball player who has made significant contributions to the sport in India. Mr. Mukesh's story is one of perseverance, passion, and pushing the boundaries of what's possible. So I would like to ask you a couple of questions. Mr. Mukesh, can you share your journey into wheelchair basketball? How did you get started and what motivated you to keep going? सर मैंने जब स्टार्ट किया, मुझे याद है 2014 में मैंने इसको स्टार्ट किया है, और काफ़ी स्ट्रगल रहा इसमें, चूँकि स्पॉन्सर हो या फिर एक्सेसिबिलिटी हो, तो इसकी बहुत ज़्यादा समस्याएं रही हम लोगों के लिए। बट फिर भी स्ट्रगल अगर को देखते हम लोग, स्ट्रगल करते करते हम लोगों ने आज ये अचीव किया है कि हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। जैसे कि अभी जो यहाँ पर क्वालिफाइंग मैच चल रहे हैं, तो यहाँ इसके बाद नेशनल में पहुँचना, ये वास्तव में हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं एक बार इंटरनेशनल भी खेला हूँ, 5 बार नेशनल में ऑलरेडी खेल चुका हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि दिव्यांगों के लिए बहुत समस्याएं हैं और वो कैसे कैसे स्ट्रगल करके यहाँ आ रहे हैं। बट अब लाइक जैसे आपको पता है होप ऑन व्हील है, और कवि अग्रवाल जी, मैं आपको नाम लेना चाहूँगी, जैसे आप लोग हैं, तो आप लोगों के माध्यम से लोग आगे आ रहे हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत मदद हो रही है, जिसकी वजह से ये जो खिलाड़ी ऐसी जगह है जहाँ
बाहर नहीं आ पाते। जैसे हमारे खिलाड़ी 4-5 खिलाड़ी हैं मिर्जापुर से आए हैं, जो कभी नहीं आए हैं बास्केटबॉल खेलने के लिए, फर्स्ट टाइम आए हैं। तो ये चलता रहता है, करते चल रहा है इसके लिए। आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किस चीज ने किया? क्या मोटिवेशन है आपका? मतलब ये मैं आपको बताऊं, मोटिवेशन मुझे सिर्फ ये दिव्यांगता से ही मोटिवेशन मिलती है, दूसरों को देख के। यार नॉर्मल लोग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पाएंगे? जैसे कहते हैं डिसेबिलिटी इज द न्यू एबिलिटी, तो वो जी मानते जी हैं जी 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 वही डिसेबल होना ही अपने अंदर में एक एबिलिटी है। एबिलिटी है। हमें ऐसा नहीं है, हमें कभी नहीं लगता है कि हमें नॉर्मल की तरह होना चाहिए। सो आपके चैलेंजेस क्या रहे हैं और आप इनने आपको कैसे बनाया है? क्या बन गया आप इन चैलेंजेस से? सर इन चैलेंजेस को फेस करते करते आज मुझे पता है कि मैं यूपी को रिप्रेजेंट करते करते मैं इंडिया के भी जो फेडरेशन है वहाँ भी इन्वॉल्व हूँ। साथ में हम लोग ये नेशनल्स ये करा रहे हैं, तो इसमें भी इन्वॉल्व हूँ मैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं सबके साथ में और नेशनल के लिए भी करवाने के लिए साथ में जुड़ा हूँ। सो आप ट्रेन कैसे करते हो, प्रिपेयर कैसे करते हो? आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है जिसकी वजह से आप इतना अच्छा खेलते हो कोर्ट को? सर रेगुलर प्रैक्टिस करना, ये रेगुलर प्रैक्टिस का नतीजा है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अगर खेल का काम ही है, अगर खेल अभ्यास नहीं करेंगे, आपका नियमित अभ्यास नहीं होगा अगर आपका, तो आपका गेम आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं यही कहूँगा, प्लेयर से भी यही कहूँगा कि आपको नियमित अभ्यास करना चाहिए। आप अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हो? मेंटली सर मैं आपको बताऊँ, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। और मेंटली प्रिपेयर करने के लिए हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना पड़ता है। अगर नेगेटिव सोचेंगे आप तो आपके पास नेगेटिविटी ही आएगी। इसलिए हाँ, कुछ नहीं कर सकते। पॉजिटिवली सोचना, हमें ये सोचना है कि हम ये कर सकते हैं बस। तो व्हील ट्रैक जैसी टेक्नोलॉजी ने व्हीलचेयर एथलीट्स की मदद कैसे की है और इन टूल्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत शानदार इसका एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको बताऊँ, इससे पहले भी मैं यूज़ कर चुका हूँ इसके लिए, और आज भी मैंने और भी जो प्लेयर्स थे उस पर भी हुआ है। तो मैं इसके लिए और कहूँगा, इसमें और भी इम्प्रूवमेंट होते जाएं दिन प्रतिदिन। आप देख रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने व्हीलचेयर को मूव कर रहे हैं, किस तरीके से हम मूव हो रहे हैं। तो ये अभी तक पता नहीं चलता था, लेकिन थैंक्स कविश अग्रवाल जी, होप ऑन व्हील, जो ये डिवाइस लगाई है, डिवाइस आई है। और हम यही कहना चाहेंगे, इस डिवाइस को और इम्प्रूव हो और खिलाड़ियों के लिए उससे बेनिफिट हो। जो अभी व्हीलचेयर बास्केटबॉल का इंडिया में माहौल है उस पर आपकी क्या राय है? आपको कैसा लगता है, कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं हम, इवॉल्व हो रहे हैं कुछ? जी सर, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और अब आपको बताएं कि और कुछ बदलाव आ रहा है। अब अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में ये बदल रहा है। गवर्नमेंट से, लोकल सपोर्टर से, सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग आगे आएँ, दिव्यांग खिलाड़ियों को देखें, उनके लिए सहयोग करें, तभी जाके हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। आपको क्या लगता है हम इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? सर मुझे ये लगता है कि आप इम्प्रूव, बहुत अच्छी डिवाइस है। इम्प्रूव करने के लिए यही है सर कि हम इसको खिलाड़ियों पर, अभी जैसे जिन पर खिलाड़ियों पर हो रहा है, इसका रिसर्च चल रहा है, और भी खिलाड़ियों से, जिससे हमें पता चलेगा, जैसे हमसे अच्छी स्टेमिना वाले खिलाड़ी भी आएंगे। अभी नेशनल में जैसा है, नेशनल में हमसे अच्छी स्टेमिना, हमारा तो उतनी स्टेमिना उतनी नहीं है, लेकिन अच्छी स्टेमिना वाले खिलाड़ी भी आएंगे। तो ये हमें पता चलेगा कि हाँ, इसमें हमारी कोई कमी है कि क्या है। कोई आपका करियर का सबसे ज्यादा शानदार मोमेंट क्या रहा कि ये आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते? सबसे ज्यादा मेमोरेबल जिसको कहते हैं? सर सबसे ज़्यादा मेमोरेबल हमारा इससे खेल से जुड़ना, जब फर्स्ट टाइम हम आए थे खेलने के लिए, तो जब फर्स्ट टाइम हमने हाथ में बॉल ली थी, बॉल के बाद जो हमारे लिए यहाँ मिला है, जो प्यार मिला है, आप जैसे सब लोग हैं, जो प्यार मिला है, उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। सो इसमें सबसे ज्यादा आपके लिए कम्युनिटी सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है, और कम्युनिटी ने आपको सपोर्ट किया, रोका, तो कम्युनिटी ने क्या रोल प्ले किया आपके सक्सेस में? रहता है, रहा है और रहेगा भी, यही फ्यूचर में भी रहेगा। सभी लोग मोटिवेट करते हैं, कभी किसी ने, कुछ लोग होते हैं, तो ये भी हमें नेगेटिविटी भी जरूरी है आना लाइफ में। कुछ लोग बताने वाले कि आपकी कमियां बताते हैं, बट अगर उन्होंने कमियां बताई हैं तो हमने उसके लिए अच्छा ही लिया है, पॉजिटिव तरीके से लिया है और आगे बढ़ रहे हैं। जिसको हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जी 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 बिल्कुल। जिससे आगे बढ़ सके बस जिंदगी बस। में। और कम्युनिटी आपको क्या लगता है आगे भी सपोर्ट करेगी? हाँ सर, कर रहे हैं, ये कहने की बात नहीं है। हाँ, हम देखते हैं जैसे होप ऑन व्हील तो कम्युनिटी में ही आता है, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरा करना हम लोगों के लिए, ये हम इंतजाम करना, खिलाड़ियों को लाना और सारी व्यवस्थाएं करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये कम्युनिटी के ही अंतर्गत ही आता है। What are some of the misconceptions people have about wheelchair athletes and how do you think we can challenge them? सर चैलेंजेस, सर देखिए खिलाड़ी मानते हैं, हम जैसे आपके लिए बताएं, खिलाड़ियों के लिए प्रमुख जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ उनको अचीव तो कर रहे हैं, वो अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, बट उनको वो फैसिलिटीज़
नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ कहेंगे आप लोगों के माध्यम से, आपके इसके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि प्लेयर्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए अचीव करने के लिए उनके लिए सपोर्ट चाहिए, मोरल सपोर्ट हो, चाहे आपका बैक सपोर्ट हो, तो ये सपोर्ट जरूरी है। हम ये लोगों की सोच कैसे बदल सकते हैं जो उनकी व्हीलचेयर बास्केटबॉल के लिए? सर हम खेल के ही सोच बदलेंगे सर, दिखा के। अभी आप देखें कि पैरालंपिक में 29 मेडल्स आए हैं, 7 गोल्ड मेडल हैं। तो ये यहाँ से बदल रहा है इंडिया, और बदलेंगे, सोच बदलेगी। बिल्कुल सही। तो आप और फिजिकली चैलेंज लोगों को क्या अपनी एडवाइस देना चाहेंगे कि वो भी कैसे स्पोर्ट्स में आए और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा पाए? यही सलाह है, हमें कभी भी नेगेटिव जो हमसे बातें करते हैं उनको नेगेटिवली नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है। खेल में आइए, ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही गेम से कहीं से भी जुड़ें, आप खेल में आइए। खेल से आने से क्या होगा कि आपकी जो नेगेटिव जो माइंड में चलता है ना, तो सारी चीजें खेल से ही खत्म की जा सकती है। आपके फ्यूचर की गोल्स क्या है अपने व्हीलचेयर के करियर के लिए? व्हीलचेयर के करियर के लिए हमारा है कि स्पोर्ट्स को आगे ले जाना, व्हीलचेयर बास्केटबॉल के लिए मोस्टली आगे ले जाना हमारा यही है, क्योंकि इसी में मैं इन्वॉल्व हूँ और आगे फ्यूचर में भी अपना टाइम जैसे व्हीलचेयर बास्केटबॉल में आगे देना चाहता हूँ। आप आपका आखिरी क्वेश्चन, आपको क्या लगता है हम व्हीलचेयर का सिनेरियो इंडिया में बेटर कैसे बना सकते हैं और लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं अपने इस इनिशिएटिव में? सर ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शेड्यूल जो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ जहाँ हमारे अच्छे अच्छे टैलेंटेड छुपे हुए हैं। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जिनको बोलते हैं, जिन पे उतना इक्वल एक्सेस नहीं है। नहीं, ये वही चीज़ है कि अगर हम जब तक उनको बाहर नहीं लाएंगे सर, तब तक हम उनको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो यही चीज़ कहें कि वो बाहर आना चाहिए दिव्यांगों के लिए। हम लोग तो नॉलेज है, जानकारी हम लोगों के लिए, तो हम लोग आ रहे हैं आगे। बट जो अभी भी ऐसी जगह क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, जैसे अब आपको बताएं मिर्जापुर से जो खिलाड़ी आए हैं यहाँ पर, तो वो बास्केटबॉल नहीं जाते थे खेलने के लिए, लेकिन फर्स्ट टाइम वो लोग यहाँ आए हैं। तो जब तक उनको निकालेंगे नहीं सर, तब तक नहीं हो पाएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।